तो this is the last chapter of your physics syllabus, radioactivity. Modern physics के यूनिट में आता है. Although not much of radioactivity is introduced to you, little part of it is introduced. We have studied about some kind of electromagnetic waves in the chapter spectrum. ठीक है, सो ये भी कुछ वेव्स ही है. ठीक है, इनको अल्फा बीटा एंड गामा वेव्स बोलते हैं. इसके बारे में हमको स्पेसिफिक स्टडी करना है. एंड दीज वेव्स आर एमिटेड by some radioactive elements, so we have to study that here. Before we begin our chapter, we have to start with atomic structure and radioactivity. So atomic structure के बारे में हमने 9th में एक चैप्टर में पढ़ा है ऑलरेडी. आई थिंक चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम था या एटॉमिक स्ट्रक्चर था शायद, if you remember, class 9th में. And that chapter had if you remember, discovery of electrons, protons and neutrons. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? सर जे थॉमसन. प्रोटॉन्स चैडविक या गोल्डस्टीन? चैडविक, आई थिंक इट वाज. गोल्डस्टीन न्यूट्रॉन्स था शायद. एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड. ठीक है. सो बिफोर दीज particles, sub atomic particles were discovered, there was no you can say knowledge about radioactivity known to these scientists. ये सारे elements, sorry, subatomic particles discover होने के बाद, why are they joining late? So ये subatomic particles discover होने के बाद then radioactivity के ऊपर और research हुआ, and then it was found that there are some elements in which the number of neutrons is more than the number of protons, and that's why their nucleus is unstable and they can disintegrate anytime, emitting certain radiations which cannot be seen with your naked eye but which can penetrate even into the wall. Some penetrate into the paper, some penetrate into wood or plastic, some even penetrate 12-inch long iron wall. So these are some different kinds of rays or waves or particles which are emitted by these radioactive substances. This chapter is about study of these substances. The first part of the chapter is about structure of atom. Do you know how the atom is made? What is the structure of atom? What is in the center of atom? Nucleus. Inside the nucleus there are protons and neutrons, which are also known as nucleons. Okay, this is basic structure. There is much more which is discovered within the nucleus of an atom, which you will know when you study about these topics in higher classes. But as of now, you should know that nucleus is in the center. It's very small. It is very hard and very dense, in which protons and neutrons or the whole mass of the atom is located. Around the nucleus there are orbits. Orbits are imaginary path in which electrons revolve. Right? Orbits. Electrons can be accommodated in an orbit according to its number or its distance from the nucleus. Like the first orbit can accommodate only 2 electrons. Second orbit 8 electrons. Third orbit 18. Which rule governs this?
2n square, which was given by Niels Bohr. Also we studied in class 9th. This is all from class 9th. So Niels Bohr ने बताया था कि 2n square रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग in the nucleus, and those many electrons can be accommodated in that particular orbit. But he told one more thing, that if it is the last orbit, it cannot occupy more than 8 electrons. So final or last shell can have only up to 8 electrons in it. ठीक है, उसके बाद साइज के बारे में भी हमने पढ़ा था, बट इतना याद नहीं रखते कोई भी कि the size of an atom is basically the radius of atom. Radius is from the center of the nucleus till the last shell. It is approximately of the order of 10 raised to minus 10 meter. What is 10 raised to minus 10 meter? Angstrom. एंगस्ट्रॉम पता है? एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ में हमने पढ़ा था. एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज टू माइनस 10 मीटर. 1 नैनोमीटर इज मीटर, 10 रेज टू माइनस 9 मीटर. ठीक है, सो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द साइज ऑफ एन एटम, वेरी स्मॉल. देन द चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, बट दैट इज द एब्सोल्यूट चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज. बट जो एक्चुअल चार्ज है वो है माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम. ये हमने किसने पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में. करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था कि एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव का जो चार्ज होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. एक्चुअली इसको बोलते हैं कूलॉम, कूलम्ब नहीं बोलते. कूलम इंडियन है, इंडियन इंग्लिश. कूलम इज एक्चुअली अ फ्रेंच नेम, सो इट इज कूलॉम. कूलॉम, 10 raised to minus 19 कूलॉम. If it is negative, then it is the charge of one electron. If it is positive, then it is charge of one proton. So electron and proton have equal charges but opposite in nature, equal and opposite, positive, negative. Mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kilograms. This is mass of one electron, which is approximately 1 by 1840 times the mass of a proton. ये सब है तुम्हारी बुक में, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा ही है तुम्हारी बुक में, या कुछ अलग है? क्योंकि मेरी बुक शायद पुरानी हो सकती है ना? सेम, हाँ, बस तो कोई टेंशन नहीं. न्यूक्लियस की जो साइज होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू माइनस 15 मीटर. 10 रेज टू माइनस 15 to 10 रेज टू माइनस 14 मीटर. दैट इज, इट इज 10,000 times smaller, or you can say 100,000 times smaller than the size of atom. So they say, in comparison, if you compare the size of nucleus and an atom, you can imagine, for your reference, for scale, you can imagine an atom is of the size of a football stadium. If the atom is thought to be of the size of a football stadium, then the nucleus is a small p placed at the center of the football field. मैच स्टार्ट होती है फुटबॉल की, तो जहाँ पे फुटबॉल रखते हैं ना, वहाँ पे अगर एक छोटा सा पी, इतना छोटा रख दिया, और फिर तुमने जूम आउट करके देखा पूरे फुटबॉल स्टेडियम को और वो पी को, जो दिखेगा भी नहीं, दैट पी इज द न्यूक्लियस, and that football stadium is the actual atom size. So that's the ratio, that is the scale of the difference between the size of the whole atom and the nucleus. ठीक है, so nucleus is very small, and that makes sense ना, because रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में यही हुआ था. अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो किया था उसने, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे, they went through the atom. Why they did not strike the nucleus? Because it's so small. Only rarely some particle, it went close to it and then deflected by large angles. But if particle had
a head-on collision with nucleus, which was once in 1 million times, then it would turn back and retrace its path from where it came. U-turn ले लेता था basically. ठीक है, so that proves that nucleus is very small. प्रोटॉन का मास 1.67 टाइम्स 10 टू द पावर -27 kg है. अब तुम बोलोगे सर ये मासेस सब याद रखने हैं, तो हाँ, तुम्हारे पेपर में, एग्जाम में, बोर्ड्स में ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, where you can easily lose marks because this is like basic, or you can say direct information based question. If you don't remember it, you will lose that mark. It is not a theory based question, so you must remember all these small things: mass of electron, mass of proton, order of size of nucleus, order of size of the atom, charge on the proton and electron. You must remember. So न्यूट्रॉन जो होता है ना, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज जीरो होता है, लेकिन इट्स मास इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन. नियरली. यहाँ पे एक स्टार बनाया है इसके बाद, ये सेंटेंस के बाद यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तुम्हारी बुक में लिखा है एग्जैक्ट मास 1.6726 times 10 to the power -27 kg mass of proton and 1.6749. That means neutron is little bit heavier than proton. Order of magnitude same है दोनों का masses का. Do you know what is a mass number? Total number of nucleons, that is total number of protons and neutrons, which is basically which make up the mass of an atom. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो नेग्लिजिबल होते हैं मास में, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, तो मास किसका काउंट करेंगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का. दैट इज द मास नंबर. ठीक है. एटॉमिक नंबर क्या होता है? The total number of protons or electrons present in an atom is the atomic number. मास नंबर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए. मास नंबर का सिंबल कैपिटल ए और एटॉमिक नंबर का कैपिटल जेड. ठीक है. ये एक छोटा सा टेबल है, तुम्हारी बुक में भी होगा. इसमें चार्ज दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, और मास दिया है. इसको याद रखना है, पहले भी मैंने बताया. मॉडल ऑफ एटम हम सबको पता है, ऐसा दिखता है. एक एटम, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अराउंड एक ऑर्बिट होती है, इमेजिनरी पाथ होती है. ठीक है. जनरली हम सोचते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. इट्स नॉट लाइक दैट. It is just for your understanding at this stage. In reality, what they have found out is that these electrons, they just buzz around the nucleus haphazardly. That's not exact circular path. And they buzz around so quickly that you don't feel it. So what do you mean that when I say you don't feel it? It's very high. Do you feel it right now? You don't feel it, right? I'll tell you why you don't feel it. Everything is made up of atoms around us. The chair we are sitting on. You feeling you're sitting on something which is moving so fast? Something under you right now is moving very fast, buzzing around actually. Do you feel something's buzzing around in your seat? Nothing, right? On the table, nothing. Those are the electrons. You can't feel them. And that is exactly same as when you see a fan which is moving at very high speed. You think that it's stationary. ऐसा दिखता है प्लेट की तरह. Have you ever observed that? Because it's moving so fast. And mostly ये तुम देखोगे propellers of aeroplanes. When they start moving at very high speed, they look like a disc, a plate which is stationary,
because they are moving so fast, they appear to be stationary, and that's the same case as with the electron. They just buzz around so fast. So these are certain models of atoms of hydrogen, helium, sodium. But one thing I want to draw your attention to here is the symbol which they are using. If you note here, He, this is the symbol of helium, chemical symbol of element helium. ऊपर क्या लिखा है? मास नंबर. नीचे क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर. दिस इज हाउ यू मस्ट रिप्रेजेंट योर एलिमेंट एनी टाइम. सी व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आगे जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, जो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम लोग इसी सिंबल से, मतलब ऐसे ही सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. सो बेसिकली एक्स, व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. ऊपर हम लोग लिखेंगे ए, व्हाट इज ए? मास नंबर. नीचे हम लोग लिखेंगे जेड. ऑलवेज रिमेंबर दिस. नाउ व्हाई आई एम सेइंग रिमेंबर दिस इज बिकॉज in different books this symbol has been given in different manners. So CBSE की बुक में ये अलग है, तुम्हारी बुक में अलग है, किसी और की बुक में कुछ और होगा. जैसे ऐसे होता है किसी किसी बुक में, या ऐसे भी होता है किसी किसी बुक में. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट हम लोग ये वाला यूज करेंगे बिकॉज दिस इज एज पर योर बुक. ठीक है? सो डोंट बी कंफ्यूज्ड व्हेन यू सी समथिंग एल्स. इट्स द सेम थिंग. अच्छा, शेल्स के नाम तो याद है ना तुम्हें? KLMN and so on. And each shell has got certain number of electrons which can be obtained by the rule 2n square. ठीक है? तो इसमें कुछ ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं. दिस काइंड ऑफ अ रिविजन फ्रॉम क्लास 9, इसलिए मैंने कुछ रीड नहीं किया अभी. अच्छा, दूसरा एक रिविजन आ रहा है हमारे सामने, बट वो रिविजन से पहले आई वुड लाइक टू रीड फ्यू थिंग्स. तुम्हारी बुक अगर तुम्हारे सामने, यू कैन हाईलाइट और अंडरलाइन और you can just read. Note that I'm recording this thing right now, so this will be available to you as a video. So you were asking me how am I recording? I'm not recording my face as usual. I'm recording the screen, my voice, screen, that's it. So this will be available as it is. Okay. नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज ग्लिम्स ऑफ व्हाट दिस चैप्टर हैज अहेड. दिस इज द थिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच यू अहेड. If an atom undergoes a chemical change, there is a change in the number of orbital electrons of the atom. Why? कोई भी एटम में अगर केमिकल चेंज होता है तो उसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होता है. क्यों? Yes, because in chemical change, an atom loses electrons or gains electrons or shares electrons. So there must be some change in the orbital electron of the atom. Whereas if the atom undergoes a nuclear change, which is a new topic for you, you have not studied about nuclear change till date, ये पहली बार तुम उसके बारे में सुन रहे हो. किसी भी एटम में अगर न्यूक्लियर चेंज होता है, नाम से ही पता चलता है न्यूक्लियर चेंज का मीनिंग क्या है. न्यूक्लियर चेंज मीन्स चेंज हैपनिंग विद इन द न्यूक्लियस. केमिकल चेंज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स में. इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं किसी एक एटम के अंदर. न्यूक्लियर चेंज में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, एब्सोल्युटली नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट द न्यूक्लियस इज कंसर्न. तो न्यूक्लियर चेंज में क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. एंड लेट मी रिमाइंड यू, they are using the word deliberately. I am telling you nucleons. What do you mean by nucleons? Protons and neutrons both together collectively. ये दोनों में चेंज होता है, इसलिए न्यूक्लियॉन्स बोला है. मतलब न्यूक्लियर चेंजेस में हमेशा तुम्हें देखने मिलेगा
कि किसी भी एक एटम की न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स या फिर दोनों कम ज्यादा हो रहा है, and that is a nuclear change. That is a very different change, very different kind of a change from the change which you have been studied in chemistry till now. अभी तक तुमने केमिस्ट्री में सिर्फ केमिकल चेंजेस पढ़े हैं, और केमिस्ट्री इज द प्लेस टू स्टडी केमिकल चेंजेस. फिजिक्स इज द प्लेस टू स्टडी न्यूक्लियर चेंजेस. यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये सारी केमिस्ट्री की चीजें फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं. Because everything whatever we have been discussing till now, number of shells, this that, is part of chemistry. And why we are studying that in physics? Because we want to draw similars between these two topics, that is chemical change and nuclear change. You have to have a clear idea about what is what. Nuclear change mein we are focused on nucleus only, and due to these changes which appear to be chemical in nature, like related with chemistry, there are some physical phenomena happening, taking place, that is generation of waves. Generation of waves is never chemical. Generation of matter is chemical. Study of matter is chemistry. Generation of matter, transformation of matter, सब chemistry में पढ़ते हैं हम लोग chemical change में. Generation of waves is not chemistry, because waves are not matter. अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि वेव मैटर नहीं होता है, पार्टिकल मैटर होता है, वेव मैटर नहीं होता है. ठीक है. एक बात याद रखो कि ये जो तुम्हारा साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, दिस इज एवर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग. यू माइट फाइंड सर्टन न्यू ट्रूथ्स as you study, as you go in higher classes, because that's how science is taught. Science is not taught in its absolute present fact truth now to you. It is taught as per your mental ability. जैसे बचपन में जो साइंस पढ़ते थे हम, वो बहुत ही बेसिक होता था, फिर धीरे धीरे नई नई चीजें उसमें इन्वॉल्व होती गई. वैसे ही ये चीजें चेंज हो जाएगी. 12th क्लास में फॉर एग्जाम्पल तुम एक चीज पढ़ने वाले हो, डुअल नेचर ऑफ मैटर. उसमें ये बोलते हैं कि डुअल नेचर का मतलब क्या है, कि हर एक मैटर वेव होता है और हर वेव मैटर होता है. मतलब कोई भी मैटर दो चीज, मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है. वो वेव नेचर भी दिखाता है और वो पार्टिकल नेचर भी दिखाता है. जस्ट इमेजिन हाउ कंफ्यूजिंग इज दैट शिट. हाउ कंफ्यूजिंग मैन. मतलब ये पार्टिकल नहीं है, ये झूठ है ये सब. ये जो मेरे हाथ में पार्टिकल नहीं है, मैं जिस पे बैठा हूं पार्टिकल नहीं है, मैटर नहीं है, वेव है. और ये जो लाइट रेज आ रही है, ये वेव्स नहीं है, ये मैटर है. ये बोलना चाहते हैं वो लोग. मीन्स एवरीथिंग हैज गॉट डुअल नेचर. बट ये हम सीखेंगे 12th में. अभी क्या हमको सीखना है कि फिजिक्स विच इज स्टडी of the physical attributes. It is not study of matter in its original form. It is chemistry's problem. Chemistry समझता है चीजों को, मैटर को. फिजिक्स में हम लोग उसके दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को देख के, हाउ दैट दीज मैटर बिहेव इन सर्टन सिचुएशन, ये हम पढ़ते हैं. इसके लिए न्यूक्लियर चेंज को फिजिक्स में डाल दिया. और आगे भी ये जो जितनी भी कंफ्यूजिंग बातें मैंने बोली है सब फिजिक्स में ही आएगी. केमिस्ट्री बहुत सिंपल है. एक्चुअली केमिस्ट्री बहुत ही हार्मलेस है, क्योंकि केमिस्ट्री को कुछ मतलब नहीं है लॉजिक से. उसको क्या मतलब है कि ये हो रहा है, इसको नोट करो, बस नोट करो इसका कलर क्या है. उसको कोई मतलब नहीं है ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसका कलर ऐसा है. ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा ही नहीं जाना चाहिए. बट फिजिक्स हैज ओनली दिस क्वेश्चन टू कंसर्न विथ, दैट इज वाई. इसलिए इस पार्ट को, न्यूक्लियर चेंज को वाई में डाल दिया, केमिकल चेंज को केमिस्ट्री में डाल दिया. अब समझो पूरा कंटेक्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये चैप्टर. ठीक है. सो इट डज नॉट गेट बोरिंग, यू शुड नो कि क्या हो रहा है. अ न्यूक्लियर चेंज. यस प्लीज. यस. Yeah. Hmm. I'll tell you. That is covered in the next part.
Yeah, so that is the next part over here. Maybe they've added it, uh, that part to simplify what they are writing over here, but I will simplify it for you. तो यहाँ पे लिखा है सेम चीज. व्हाट यू आर सेइंग इज अ न्यूक्लियर चेंज रिक्वायर्स मच हायर एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू MeV. पहले तो तुम लिख लो MeV क्या होता है. MeV, if you have pencil you can note down, is mega, which is a prefix, electron volt. This electron volt is the unit of energy. Mega is of course the prefix. So MeV is nothing but unit of energy. क्या है? So atomic energy is generally measured in MeV. Atomic energy मतलब the energy obtained from atom. मुझे बताओ एटम के अंदर से एनर्जी कहां से मिलती है? द सोर्स न्यूक्लियस. अभी हमने देखा न्यूक्लियस में चेंजेस होता है, न्यूक्लियर चेंज. तो एटम के अंदर भी एनर्जी है, हर एक एटम के अंदर एनर्जी है, और उसका सोर्स है उसके न्यूक्लियस. और ये एनर्जी को जब हम मेजर करते हैं ना, तो वी यूज द यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which in larger format known as mega electron volt. It's larger, you can say multiple. तुमने वर्क एंड एनर्जी इसी क्लास में पढ़ा है 10th में, राइट? एनर्जी का क्या यूनिट यूज किया था? जूल. अब हम जूल नहीं यूज करेंगे, अब हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा और किलो और वॉट एवर गीगा, दैट डजेंट मैटर, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट is going to be our unit of energy for this chapter. ठीक है? So again coming back to our basics, this chapter is about energy, but a specific kind of energy which is generated from the nucleus of an atom, and that's why it is also known as nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वर्क एंड एनर्जी में भी हमने थोड़ी बात की थी, इफ यू रिमेंबर. न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी हेल्पफुल. It can be obtained by you can say reaction or nuclear change of very small amount of nuclear fuel. It can generate a huge amount of energy. उसके advantages, disadvantages, nuclear power plant, याद है? That is work and energy का third part. So this is also about that energy, but how that energy, or what is the amount of energy which we get, that's what we will find out here. So first thing what they say is nuclear change requires much higher energy of the order of few MeV, which is nearly 10 raised to 6 times as compared to the energy required for a chemical change. है ना वही चीज, केमिकल चेंज में जितनी एनर्जी चाहिए उससे बहुत ज्यादा, 10 raised to 6 times. 10 raised to 6 times means 10 lakh times more energy is required for a nuclear change. ठीक है? Which is of the order of few electron volts only. What is few electron volts? The energy required for chemical change. And energy required for nuclear change, few mega electron volts. So that's why chemical change is it's very ordinary. It is happening around us. Rusting of iron, ripening of fruit, that curdling of milk, सब होता है ना, केमिकल चेंज ही है ना. न्यूक्लियर एनर्जी बता सकते हो कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं होता इतना इजीली. It's not an easy process. In a nuclear reaction, the atomic number or number of protons and the mass number or total number of protons and neutrons remains conserved. In a nuclear reaction, atomic number and mass number remains conserved. Conserved matlab before and after nuclear reaction, the total atomic number and the total mass number remains the same. But there is some transformation in the number of nucleons. And how that transformation takes place, we will study. In other words, the total sum of atomic numbers
of the reactants is equal to the total sum of atomic numbers of the products, and the total sum of mass numbers of the reactants is equal to the total sum of mass numbers of the products. Sum of atomic numbers of the reactants and products remains the same, and sum of mass numbers of reactants and products remains the same in nuclear reaction. So this is a very important, you can say, characteristic which we will use to write nuclear reactions. Just like chemical change हम लिखते हैं ना, chemical reaction equation, वैसे nuclear change भी हम लिख सकते हैं, लिखेंगे इसमें chapter में. So these are three, you can say, introduction to what we are going to study in this chapter. Then there is isotopes, which you have studied in class 9th. What is isotope? You missed the main part. Atoms of the same element which has same atomic number but different mass number are called as isotopes. तो मतलब कंडीशन क्या है आइसोटोप के लिए? आइसोटोप की कंडीशन ये है कि द एटम्स मस्ट बी बिलोंगिंग टू द सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट से दो टाइप के एटम, हमें दो या दो से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं, मिलने चाहिए. ये दोनों का कॉमन क्या होगा, सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर. मतलब एटॉमिक नंबर मतलब जेड. जेड सेम रहेगा दोनों का, ठीक है, लेकिन मास नंबर सेम नहीं होगा. A1 A2 मास नंबर सेम नहीं होगा. मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे दोनों में. यस, प्रोटॉन सेम है तभी तो एटॉमिक नंबर सेम है. इलेक्ट्रॉन सेम होंगे दोनों में. यस, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे. एग्जाम्पल दे दो. क्लोरीन सबसे फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है. अब रिमेंबर दैट ये जो मैं लिखने वाला हूं दैट इज अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक. सो ऊपर क्या आता है, मास नंबर. यहां पे मैं लिखता हूं 35, यहां पे मैं लिखता हूं 17. सही लिखा है गलत लिखा है? सही है, राइट. यहां पे क्लोरीन दूसरे टाइप का, मतलब आइसोटोप, ठीक है. ये दोनों कजिन्स हैं, ट्विन ब्रदर्स भी बोल सकते, कैसे भी कुछ भी बोलो. 37 17 क्या फर्क है इसमें? प्रोटॉन्स कितने हैं? 17. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18. कैसे न्यूट्रॉन्स मिलते हैं? न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ऑलवेज रिमेंबर Z माइनस A. 35 माइनस 17 न्यूट्रॉन. अच्छा, यहां पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 17. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये. Because their number of neutrons are different, their masses are different, and since they are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number, these two are known as isotopes. बट तुम्हें लग रहा होगा हम तो न्यूक्लियर चेंज में थे, अभी आइसोटोप कहां से आ गया वापस? इट्स नॉट पॉसिबल. व्हाट दे आर डूइंग. कभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे, वापस केमिस्ट्री में आ गए. फिजिक्स कब होगा? So this I'm taking you to the physics part. Why we are studying isotope is because, before I give you the reason, you know hydrogen has 3 isotopes: protium, deuterium and tritium. Atomic number 1 1 1, but mass number 0 नहीं. 0 कैसे यार? 1 2 3. क्योंकि एक प्रोटॉन वाले हाइड्रोजन को प्रोटियम बोलते हैं, तो मास नंबर तो 1 ही रहेगा. एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वाले हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम बोलते हैं, और एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाले हाइड्रोजन को ट्रीटियम बोलते हैं, ठीक है. सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम. वैसे ही कार्बन के भी 3 होते हैं. कार्बन C12 6, C13 6 एंड C14 6. C12 6 सबसे ज्यादा अबेंडेंट है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं.
ये जो C14 6 वाला है ना, वो थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है। उसके बारे में, उसके यूजेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्लोरीन के बारे में हमें पता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे, एंड हियर वी गेट इंट्रोड्यूस टू इट्स फिजिकल पार्ट, दैट इज न्यूक्लियर चेंज पार्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन पार्ट। टिन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। Well, that's not so much of a physics. This is chemistry. Remember it, huh? But which has the total number of isotopes, which element and how many? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रिवियल है। अच्छा, अब आता है तुम्हारा फिजिक्स, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पार्ट, और इसको ध्यान रखना क्योंकि आगे यही हमें पढ़ना है। द आइसोटोप्स आर ऑफ टू काइंड्स, स्टेबल आइसोटोप्स which have the number of neutrons nearly equal to the number of protons in their nucleus, and unstable or radioactive isotopes which have the number of neutrons much more than the number of protons in their nucleus. क्या बोला है उन्होंने? आइसोटोप्स दो टाइप के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में इतना फर्क नहीं होता है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। बट अनस्टेबल आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मच मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो अनस्टेबल आइसोटोप होता है। उसका अनस्टेबिलिटी जो होता है दैट लाइज इन इट्स न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और ऐसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चेंज होना बहुत ईजी होता है। सो न्यूक्लियर चेंज का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियस है ना, स्प्लिट हो जाता है, इट गेट्स स्प्लिट। जस्ट इमेजिन, nucleus is the only part which is the most dense, most stable part in an atom. If that splits, दूसरी कोई चीजों की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। शेल्स तो इमेजिनरी होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास नहीं होता है, तो वो तो अपने आप ही डिवाइड हो जाएंगे। इफ न्यूक्लियस ब्रेक्स, व्हाट हैपेंस? दैट एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, टू न्यू एटम्स विथ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। यू इमेजिन। तो एक साइंटिस्ट था, याद है केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वो अजीब आदमी था जिसने बोला था कि गोल्ड का जो सिंबल है ना, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा, और किसी और का सिंबल कुछ ऐसा होना चाहिए, और किसी और का सिंबल कुछ ऐसा होना चाहिए। अजीब आदमी था यार। फिर वो बर्जीलियस ने आके, ही सेव्ड द डे, उसने बोला ये सब मत करो, सिंबल ड्रॉ करते करते टाइम चला जाएगा, बच्चे फेल हो जाएंगे। तो उसने बोला कि सोडियम का सिंबल Na, कार्बन का सिंबल C, पोटेशियम का K, एंड सो ऑन। इजी कर दिया उसने लाइफ। सो जॉन डाल्टन बहुत अजीब आदमी था। उसने एक गलती से बोल दिया था, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो गलत प्रूव हो गया। यही चीज से गलत प्रूव हो गया। अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या करते हैं? दे ब्रेक, they get cracked and they break. When they break, they get converted into new atoms. Atom destroy हुआ? Yes. नया atom बना? Yes. Atoms can be destroyed and atoms can be created if they undergo nuclear change. So he was wrong. He didn't know anything about nuclear change, Dalton. इसके एक एग्जाम्पल यहाँ पे लोग ने दिया है, यूरेनियम, यूरेनियम 23592 एंड यूरेनियम 23892। दिख रहे दोनों? Each isotopes has 92 protons. Uranium 23592 has 143 neutrons and the other one has 146 neutrons inside the nucleus. In both isotopes, the number of neutrons are much more than the number of protons. So both are radioisotopes. Similarly, carbon 14 6 is also radioisotopes out of 3 isotopes of the carbon. बट तुम बोलोगे सर कार्बन में तो इतना कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब 6 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है, 2 के डिफरेंस में इतना क्यों कार्बन हीरो बन रहा है? कार्बन जनरली रेडियो एक्टिव नहीं होता है, बट वो आइसोटोप कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है। ऐसा क्यों है?
उसके बारे में कार्बन के ऊपर जिसने रिसर्च किया उसने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, बट दैट्स नॉट आवर टॉपिक. आवर टॉपिक इज यूरेनियम. यूरेनियम में जो हमको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी उन्होंने, दैट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड number of neutrons. If it is very large, then it will behave as a radioactive substance, a radioactive atom. And that is happening. यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स है और 143 एंड 146 न्यूट्रॉन्स. दैट इज ह्यूज डिफरेंस. सो यूरेनियम इज हाईली रेडियोएक्टिव. और उसमें भी जो यूरेनियम 238 है, that is the one which is highly radioactive, क्योंकि that is the other isotope which has larger number of neutrons, so that is more radioactive. Then they come with a new topic of isobars. I'm sure you have not studied about isobars earlier. पहली बार सुन रहे हो isobars? नहीं पढ़ा है, 9th में नहीं था ये. So isobars are atoms of different elements having same mass number but different atomic numbers. यहाँ पे एक चीज नोट करो, आइसोटोप्स और आइसोबार्स में एक डिफरेंस है जो पूछ सकते हैं तुमको. आइसोबार्स आर द isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number, but isobars are the atoms of different elements having different atomic numbers but same mass numbers. पूरा रिवर्स है दोनों का. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. यहाँ पे इसका एग्जाम्पल से तुम्हें सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा. सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोबार्स. Now you must be wondering कि सर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास या मास नंबर तो 24 होता है जनरली. हमने तो 24 ही पढ़ा है हमेशा. इवन केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट या कोई भी किसी का भी मास निकालते तो 24 लेते हैं मैग्नीशियम का मास. यहाँ 23 क्यों दिया है? तुम बताओ क्यों दिया है? आइसोटोप होगा वो मैग्नीशियम का. तो ये मैग्नीशियम का पर्टिकुलर आइसोटोप और ये सोडियम, ये दोनों आइसोबार्स है. क्यों पता है? दोनों का मास 23 है. दोनों अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करने वाले एटम्स है और दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, इसलिए दोनों आइसोबार्स. सिमिलरली कार्बन 14 6 एंड नाइट्रोजन 14 7 आइसोबार्स है. और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है बट तुम्हें याद रखना है. If the number of protons and neutrons get interchanged inside the nucleus, they are called mirror isobars. So question पूछ सकते हैं, what are mirror isobars? If the number of protons and neutrons gets interchanged, they are called mirror isobars. Sodium 2311, magnesium 2312. They are also mirror isobars. सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11. न्यूट्रॉन कितने? 12. मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन है? 12. न्यूट्रॉन कितने? 11. प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो इंटरचेंज हो गया है सोडियम और मैग्नीशियम, इसलिए इनको मिरर आइसोबार्स बोलते हैं. सिर्फ यही एक ऐसी पेयर है. और एक चीज, आइसोटोन्स, the atoms having different number of protons but same number of neutrons, that is different Z and A but same A and Z, are called isotones. A minus Z, I'm sorry. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अलग होंगे क्योंकि अलग अलग एटम से बिलोंग करते हैं, ये अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करते हैं ये एटम्स, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे. आइसोबार में क्या था? मास नंबर सेम था. आइसोटोन्स में क्या है? एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है. क्या सेम है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो एग्जांपल है सोडियम 2311, मैग्नीशियम 2412. सोडियम में प्रोटॉन्स कितने, सॉरी न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 23 माइनस 11, 12. मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 24 माइनस 12, 12. दोनों में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12. बट दोनों का एटॉमिक नंबर देखो अलग है, मास नंबर देखो अलग है, अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसलिए आइसोटोन्स. पोटेशियम एंड आर्गन, पोटेशियम 3919, argon 4020, both are isotones because they both have 20 neutrons.
सो आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ होमवर्क फॉर यू गाइस. अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट मैं देख रहा हूँ कि आगे कहाँ तक मैं इसको खींच सकता हूँ. It doesn't have any part, this chapter. What is the next part then? Oh, okay, okay. So the first part is lengthy. Okay, great. स्टोरी पे आते हैं. हेनरी बैक्वेरल 1896 में सबसे पहले उसने नोटिस किया था रेडियो एक्टिविटी. कैसे, उसे स्टोरी यहाँ पे दी है. So Henry Becquerel was doing some experiments in his lab, and in his lab there was uh, a developing, क्या बोलते हैं उसको, You- जहाँ पे फोटोज को डेवलप करते हैं रेड कलर का लाइट लगा के, डार्क रूम बोलते हैं शायद. तो उसके लैब में एक डार्क रूम था. तो डार्क रूम पहले हुआ करते थे. पहले मतलब अप टू 80s 90s वी यूज टू फाइंड डार्क रूम्स, because up to 80s 90s these photographic films were used, not digital camera like we have now in our mobiles. There were cameras in which you had to put the reel, you had to buy and put the reel, load it, and then when you click the photograph, that shutter opens and the rays of light, they directly fall onto that film, and the photograph gets the you can say the negative of the film, negative, that is the film, gets developed in the developing lab. In the dark room में क्या होता है कि there is no white light, there is only red light, because it has got the longest wavelength and very less frequency, so it will not affect that photographic film. तुमने देखा होगा मूवीज में, वो ऐसा एक थ्रेड होता है, उसके ऊपर सारे फोटोग्राफ को हैंग करते हैं बिकॉज दे आर वेट. उसको एक पानी में, लिक्विड में डालते केमिकल में, एंड दे मूव इट अराउंड सो दैट फोटोग्राफ गेट्स प्रिंटेड ऑन इट, एंड देन दे हैंग इट. या द रील्स, या so basically those were the tools on which photographs were taken up to 90s. बाद में डिजिटल आ गया कैमरा, तो या so yeah, the physical pictures we had. So Henry Becquerel at that time did not have reels, but he had photographic plates. तो पहले जो cameras थे ना, they were huge, and you need to get under a black colored cloth to get the camera, to get the photograph. And then there was a button, so flash आता था और shutter open होके बंद हो जाता. तो कैमरा सामने जो भी है उसका एक yes, I think so. And you need to, वो उसमें उल्टा दिखता था स्क्रीन में, under that cloth or something like that. That's a old camera in which photographs were taken. So those photographs were, you can say, directly projected onto these photographic plates, and it used to capture that moment, and उसमें से फिर photograph को print किया जाता था. So he had many unused photographic plates, Henry Becquerel, in his lab, dark room. And he also had some certain, how scientists are, उनका जो lab होता है ना, it's a mess. It's not like your school laboratory. कुछ भी टच नहीं करने का कहीं भी, सब जहाँ है वहीं रहेगा सालों तक, कोई किसी को टच नहीं कर सकता किसी चीज को. वो स्कूल का लैब नहीं होता, एक्चुअल साइंटिस्ट का लैब, इट्स अ मेस. एवरीथिंग इज scattered here and there. तो हेनरी बैक्वेरल was a very curious person, and he had different objects lying around in his lab. So he had certain stones, minerals, which he got because he thought that these have some unique different properties. तो वो भी रखे थे उसने उधर ही डार्क रूम में. So these photographic plates were packed in paper so that they are not affected by light and they are not damaged. When he opened those photographic plates, he found them to be damaged.
देन ही थॉट दैट समबडी सोल्ड मी दिस डैमेज प्लेट्स, तो जाके झगड़ा करके आ गया वो शॉपकीपर के साथ। बोलता, वो शॉपकीपर ने बोला मेरी कोई गलती नहीं, आप चेक कर लो। फिर उसने सोचा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मेरी लैब में ही कुछ मैंने ऐसी चीजें रखी है, शायद उससे ये डैमेज हुआ है। देन ही inspected everything and then he found those pieces of stones. So he brought a new photographic plate, kept in front of that stone, and he opened and found it to be damaged. Then he discovered certain invisible rays. He found, the conclusion was that there are certain invisible rays which we cannot see with our naked eyes, but these photographic plates, they get damaged with these rays. So these are certain rays which are emitted by these salts or minerals of certain metal. That metal was uranium. तो यूरेनियम में से अपने आप ये रेज निकलती थी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। यूरेनियम को भी उसने पैक करके एक डब्बे में रख दिया, फिर भी रेज निकल रही है। सो ही वॉज रियली पजल्ड कि ये क्या है। Then he did some research and experiments on these rays, and he found that these are some radiations which are of three types: positive, negative, and neutral. Alpha, beta, and gamma. Alpha rays were positively charged, and you already know what is alpha particle. Alpha particle is a doubly charged helium nucleus. हीलियम की न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम की न्यूक्लियस में क्या होता है? दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं, इसलिए उसका चार्ज क्या होता है? 2+। हीलियम की न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? 2+। सो डबली चार्ज्ड हीलियम एटम या फिर हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं उस स्टोन से या यूरेनियम से। देन बीटा पार्टिकल विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। and gamma radiations which are neutrons, neutral in nature. ठीक है? So they are exactly, you can't say they are neutral, but they are certain energy radiations which are neutral. But out of these three, alpha, beta, and gamma, gamma is the most dangerous. If it goes through your body, you will have cancer for your life. You know about Russia? What is the name of the place जहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था? रशिया बेटा, रशिया, जापान नहीं, ईस्ट वेस्ट। उसके ऊपर एक HBO ने सीरीज भी बनाई थी, चेरनोबिल, शेरनोबिल, शेरनोबिल। शेरनोबिल में वो सीरीज देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा रेडिएशन होता क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू सम मेजर issues with the scientists, their mistakes basically, their ego, Russian scientists, that they can never be wrong. There were certain people there. So उधर मिस्टेक हो गया, पूरा ब्लास्ट हो गया, रेडिएशंस पूरे हर जगह निकलने लगे। ठीक है? तो वहां पे सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया, और वो फायर ब्रिगेड ने नीचे पड़ा हुआ एक ग्रेफाइट का इतना बड़ा पीस था, उसको उठाया just for the sake of curiosity, and after certain days उसका कंडीशन दिखाया है, पूरा हाथ, the whole hand rotten, पूरा सड़ गया पूरा हाथ। they all died within a month. जितने भी फायर फाइटर्स थे, they all died within a month, क्योंकि वो पूरा बॉडी रेडिएशन चला गया अंदर। दिखता नहीं है ना, ऐसा एनीमी है जो दिखता नहीं है, वो खत्म कर देता है तुमको। और एक उसमें सीन दिखाया है इन शर्नोबिल, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, दूर तक सुनाई दिया, मतलब लोगों ने बिल्डिंग से देखा दूर से, दूर एक सिटी था शेरनोबिल, और ये पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई और जगह पे था। तो ये लोग क्यूरियोसिटी से बच्चों को लेके एक ब्रिज पे गए, वो ब्रिज से ये न्यूक्लियर प्लांट दिखता था दूर, किलोमीटर्स अवे। ठीक है? जैसे तुम टेरेस से देखते हो, यहाँ पे खारगर स्टेशन है, दिखता है ना दूर से,
मतलब दूर से कोई किलोमीटर्स अवे यू कैन सी सम फार अवे थिंग्स, वैसे वो लोग ब्रिज पे जाके देख रहे थे, देखो वहां पे ब्लास्ट हुआ है। ये सब लोग विद इन अ मंथ दे डाइड। जस्ट इमेजिन, दे डिड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट with that place. They were not in the blast also. They just saw it. They were there. The radiations, they passed through them. उनके बॉडी को अंदर से उनके सेल्स को खत्म कर दिया. It directly targets your cells, gamma. It's so much penetrative that it degenerates your cell. पूरा खत्म कर देता है उसको. अगर तुम्हारा सेल्स खत्म हो गया, सेल्स से क्या बनता है? टिश्यू. टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन. ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा बॉडी. बट दैट विल नॉट हैपन इंस्टेंटली कि देखा और मर गया. इट विल हैपन स्लोली, क्योंकि वो म्यूटेशन है. सेल में म्यूटेशन होता है एंड दैट हैपन्स वेरी स्लोली. इट टेक्स इट्स टाइम एंड दैट प्रोसेस इज वेरी अगली बिकॉज यू कांट इवन टच दैट पर्सन. इफ यू टच दैट पर्सन you may also get those radiations. Those radiations, they get stored into your body, in each and every cell of yours. Not even body, even in cloth. जो फायर फाइटर्स थे जिन्होंने वहां पे काम किया था शेरनोबिल में आग लगने के बाद, जो आग बुझाई थी, उनके जो ये थे ना कपड़े, जो प्रोटेक्टिव गेयर था, वो सबको जलाना पड़ा क्योंकि उसके अंदर भी रेडिएशंस घुस गए थे. So dangerous are these radiations, which were uranium, any nuclear substance. जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है ना, वहां पे मिलेगी. पीरियोडिक टेबल पे नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज देखा है तुमने? देखा है? एक्टिनाइड सीरीज है ना, एक्टिनाइड सीरीज ऑल रेडियो एक्टिव. वहां पे चले जाओ, मिल जाएगा रेडियो. अगर इतना ही शौक है तो. बता रहा हूं इतना डेंजरस है यार. ब्रिज पे जाने वाले लोग मर गए. तुम बोलो कहां मिलेगा, तुम ये बोलो कहां नहीं मिलेगा. सीरीज कहां मिलेगा? हॉटस्टार पे मिलेगा. नहीं देख ले है. गैमा रेज मत पूछ कहां पे मिलेगा, सीरीज पूछ कहां मिलेगा. हॉटस्टार पे मिलेगा. शेरनोबिली नाम है, देख ले जाके. इट्स रियली नाइस. लिमिटेड सीरीज, 6-7 एपिसोड्स ओनली, बट लाइक गूज बम सीरीज है वो. So we are going to talk more about these particles and everything. What I want you to go through at home is the properties and characteristics of these particles. मैंने पार्टिकल की बात की, एक ओवरव्यू दिया तुमको रेडियो एक्टिविटी का. अब तुम्हें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पढ़ के और लर्न करके आनी है. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स टिक कर लो. 11 प्रॉपर्टीज है, 11. तुम्हें याद है तुमने स्पेक्ट्रम में प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव्स, गैमा रेज वो पढ़ा था, याद है? माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़े थे स्पेक्ट्रम में, या भूल गए? वही चीज है ये, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. 11 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है अराउंड 11, और गैमा रेडिएशंस की, रेडिएशंस बोला है, पार्टिकल्स नहीं बोला है. सो गैमा आर बेसिकली वेव्स. ठीक है, 11. और उसके बाद दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा. डिस्टिंक्शन मतलब उनके डिफरेंसेस. इसमें तुम्हें पूरा समरी मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं. बस सिर्फ यहां तक तुम्हें पढ़ना है. सो व्हाट विल हैपन इज यू विल नो मोर अबाउट दिस थिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट. फिर हम लोग यहीं से आगे इसको लेके जाएंगे. यहां से आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है न्यूक्लियर चेंज. मुझे लगता है और 2 लेक्चर लगना चाहिए इसको, अगर अच्छे से ऐसे डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो. If you want me to make a video where I just read it and finish it, I can do that, but that will be very boring. So that's why I want you to take it slow. ठीक है? And don't worry about your boards. They are not happening soon. ठीक है? They will happen, but they will happen late. We have time. Let's utilize this time to make up for whatever you have lost in this lockdown thing. Now that I am available in physical class, I want all of you to come.
because every one of you is taking some risk, going down, playing, meeting friends, going to relatives house, दिवाली मनाना, सब कुछ हो रहा है, तो पढ़ाई क्यों बंद है? अच्छा, स्कूल रिस्की है क्योंकि वहां पे एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, यहाँ तो नहीं है ना ऐसा, तो यहाँ पे तो आ ही सकते हो। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो प्लीज आओ यहाँ पे, और जो भी अभी तक मिस किया है उसको रिकवर करेंगे हम लोग, है ना? तो ये तो हो जाएगा, अभी सिलेबस धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे, बट अच्छे से करेंगे। बट उसके बाद फिर जो आगे मैंने पढ़ाई थी चीजें, उसको भी मुझे रिवाइज करवाना है, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट देन आई डोंट नो व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है? सो आई एंड दिस सेशन ओवर हियर एंड आई विल सी यू ऑन, व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? फ्राइडे आर मीटिंग डेट। ठीक है, सो ऑन फ्राइडे प्लीज जो लोग ऑनलाइन है, इफ पॉसिबल, इफ यू आर इन गुड हेल्थ, if there is no corona around you, then you are welcome to join physical class. Okay, I'm Yes, sir. stopping the recording.